Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Sid Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss measurement and evaluation part 3. In this part, I will discuss standard deviation, Z score, T score, and also you will get information about normal distribution bell-shaped curve. This part is very important one. Previous previous UPSC principal and vice principal exam, many questions actually were coming from this part. So definitely the session would be interesting one. So please listen the video till the end and collect information. So in this part, I will explain everything about these concepts, and also I will discuss 15 MCQs. Those type of questions actually nowadays actually framing by the different IPINS organizations. So my friends, please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru Let's Compete. Please subscribe, like and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So you tell your friends also and tell your colleagues also, they can view my video. So please do not forget to click on the subscribe button. If anything is doubt, then you can join my WhatsApp number. It is 8327782034. You contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss measurement and evaluation part 3. First one, you see, before the standard score actually, Z score, T score, you must have knowledge about the arithmetic mean and standard deviation. So that first I will discuss about standard deviation, normal formulas and its properties is the very important one. So you see, standard deviation is commonly abbreviated as SD and denoted by sigma. Okay, this symbol it is sigma, and tell about the value, that how much it has deviated from the mean value. Actually, standard deviation is a special average. So that it is a special average, and it can inform that the observations actually, by how much the observations spread out actually differ from the mean. ओके जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका वो कितना डिफर करते हैं मीन से, तो ये एक स्पेशल एवरेज है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्पेशल एवरेज and inform about actually by how much observations it means apart from the arithmetic mean but from the average. Okay, it is a special kind of average. So and it tells about the value, that how much it has deviated from the mean value. जो मीन वैल्यू है, जो एक सेट है उसमें ऑब्जर्वेशन है, उसका एक मीन वैल्यू है, ठीक है नहीं, तो वो मीन वैल्यू से अदर ऑब्जर्वेशंस कितना डेविएट करते हैं, तो ये एक स्पेशल एवरेज है. तो यही बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, बाय हाउ मच एक्चुअली द ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली डेविएट फ्रॉम द मीन वैल्यू, बाय हाउ मच द ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू अपार्ट फ्रॉम द मीन वैल्यू. ठीक है. So next one, it is the measure of dispersion of statistical data. Measure of dispersion, it is the second average. First average, mean, median, mode, and second measure of average is measure of dispersion, and in best measure of dispersion is standard deviation. Okay, so if we get a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, if we get a low standard deviation, यदि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका वैल्यू लो है, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू लो है, तो फ्रॉम दिस एक्चुअली वी हैव डिटेक्टेड दैट इट मींस द ऑब्जर्वेशंस आर जस्ट नियर बाय टू द मीन. Observations are not far off from the mean. Observations are deviated, but they are not deviated by much from the mean value. So it means that values tend to be close to the mean value. यदि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू लो होता है तो हम ये सोचेंगे कि जो ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू मीन वैल्यू के आसपास है. ओके, और इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाई, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इज हाई, इट शोज दैट observations are far away from the mean value. Okay, okay, so it means observations are more deviate from the mean value. So low standard deviation less deviate from the mean value, high standard deviation it means more deviate from the mean value. ठीक है.
Next one, this concept was introduced by Carl Pearson in 1893, also important one. So just to remember, it was introduced by Carl Pearson in 1893, year also particularly just to remember. Important and widely used measure of dispersion, ये बहुत important measure of dispersion है. It is free from these defects which afflicted other methods and satisfies most of the properties of a good measure of dispersion. यदि क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि which one is a good measure of dispersion, it is standard deviation. क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो measure of dispersion है ये सेकेंड मेजर ऑफ एवरेज है. तो गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जैसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में गुड एवरेज बोलेंगे तो मीन को बोलेंगे. ओके, गुड एवरेज मीन. तो सिमिलरली ये सेकेंड मेजर ऑफ जो एवरेज, जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन है स्टैंडर्ड डेविएशन. क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपका मीन डेविएशन है, ओके, आपका क्वार्टाइल डेविएशन है. ठीक है, तो इसमें बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है स्टैंडर्ड डेविएशन. Also known as root mean square deviation, and it is the square root of means of square deviations from the arithmetic mean. इसको थोड़ा लास्ट पार्ट को मैं समझा देता हूं. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्या क्या निकालना है. सपोज ऑब्जर्वेशंस गिवन, आप मीन निकाल दो. आप यहां पर मीन निकालो फर्स्ट. ठीक है, और यहां पर डेविएशन निकालो. डेविएशन इज ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन. ओके, इसको आप निकालो. ठीक है, तो एक्स मीन्स ऑब्जर्वेशंस गिवन, आइटम्स गिवन, मीन निकाल दो. ओके, हाउ कैन यू फाइंड मीन? सिग्मा एक्स बाय एन करके आप निकाल दो. मीन निकालने के बाद ये डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम मीन. एक्स ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, आप निकाल दो डेविएशन फ्रॉम द मीन. फिर इसका स्क्वायर, यही है डेविएशन. जो एक्स माइनस बार ओवर एक्स, इट इज द डेविएशन फ्रॉम मीन. बार ओवर एक्स मीन्स वही मीन सिंबल है. एक्स मीन्स ईच ऑब्जर्वेशन, इसका स्क्वायर निकाल दो. ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल दो, डेविएशन का स्क्वायर निकाल दो. ठीक है, क्लियर. फिर ये जो आप जो डेविएशन का स्क्वायर निकालोगे, इसका मीन निकाल दो. इसका मीन, अच्छा, फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? ना सिग्मा जो स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर ऑफ द डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस गिवन? Here you see in x how many observations given, how many items are there, and its square root, clear. so बहुत इजी है इसको निकालने में. तो और एक बार बता देता हूं, आप ऑब्जर्वेशंस दिया है, आप डेविएशन निकाल दो. डेविएशन एक्चुअली डी, डेविएशन मींस डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल दो. ओके, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, उसका स्क्वायर निकाल दो. ओके, क्योंकि स्मॉल डी जो है वो डेविएशन है. ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, डी स्क्वायर निकाल दो. ठीक है, यहां पर डी स्क्वायर निकालने, सिग्मा डी स्क्वायर निकाल दो. ठीक है, तो डी मीन्स व्हाट? इट इज ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, सेम थिंग. सो फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इट इज सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर, ओके, बाय एन. ओके, जो स्क्वायर ऑफ द डेविएशन है उसका मीन आप निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन का मीन निकालेंगे. होगा सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन, इट्स स्क्वायर रूट. क्लियर. तो इसीलिए इसका अल्टरनेट ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. इट इज द स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर. अच्छा, स्क्वायर डेविएशन, इट इज स्क्वायर डेविएशन. सिग्मा डी स्क्वायर, इट इज स्क्वायर डेविएशन. क्लियर. सिग्मा डी स्क्वायर, इट इज स्क्वायर डेविएशन. अच्छा, डी मीन्स व्हाट? डी मीन्स आई हैव रिटन हियर, डी इज इक्वल टू ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन. क्लियर. So it is square deviation and mean of the, how to, already you got sigma d square, square of the deviation. So square deviation का mean निकाल दो. So divided by n. Okay, square deviation का mean निकाल दो, sigma d square by n, then इसका square root of this one, it is standard deviation. Clear. तो last point also you remember, also known as root mean square deviation, and it is the square root of means of the square deviations from the arithmetic mean. So आप याद रखो, जो डेविएशन है वो ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन है. ओके, देन आप स्क्वायर डेविएशन निकाल दो, और स्क्वायर डेविएशन निकालने के बाद उसका मीन निकालो, इसी का मीन निकालो, स्क्वायर डेविएशन का मीन निकालो. तो स्क्वायर डेविएशन का मीन कैसे निकालेंगे? ना सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन. तो स्क्वायर डेविएशन का मीन हम निकालेंगे सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन. एन इज द हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, ओके, इन ए सेट ऑफ डाटा.
तो उसका स्क्वायर रूट ले जाएंगे तो वही है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, फॉर्मूलाज, टू फॉर्मूलाज यू रिमेंबर। एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सैंपल क्या है, एक सैंपल साइज लेंगे, एक लार्जर पॉपुलेशन है, लार्जर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, इसमें हम एक सैंपल लेंगे, रैंडमली एक सैंपल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लेंगे। ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे। सपोज ये जैसे x ये दिया गया है, सपोज देखिए फॉर्मूला में इसको डिस्कस करता हूं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये x दिया है। ठीक है, और इसका मीन निकाल दो आप, इसमें इसका मीन निकाल दो। ओके, जो भी डाटा रिलेटेड टू द पॉपुलेशन पूछा है, और यहां पर सपोज वेजेस है, यहां पर सब वेजेस है, तो मीन वेज निकाल दो। सपोज x जो है मैं वेजेस, डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ले लिया, सो मेनी वर्कर्स आर देयर। सपोज एक फैक्ट्री में 3000 वर्कर्स है, तो हम 3000 वर्कर्स से हम सपोज एक सैंपल ले जाएंगे, सैंपल सपोज 15 वर्कर्स हम ले लिए, तो 15 वर्कर्स का हम डेली वेजेस देखेंगे, यहां पर डेली मीन डेली वेज निकाल देंगे। फिर हम डेविएशन को जाएंगे, डेविएशन क्या है ना, इट इज ईच डेली वेज माइनस मीन डेली वेज, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, वही है यहां पर देखिए x माइनस मीन। ओके, वही है डेविएशन। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट में स्क्वायर ऑफ द डेविएशन निकाल दीजिए, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन है। ठीक है, डी स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला देखिए ये सिग्मा डी स्क्वायर, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है इट इज सिग्मा डी स्क्वायर। ओके, सिग्मा डी स्क्वायर बाय n माइनस वन। एन मीन्स एक्चुअली जो आप सैंपल लिया, जो पॉपुलेशन रिलेटेड में एक ग्रुप में सैंपल लिया, तो कितना लोगों को लिया इन सैंपल। एक्चुअली सपोज मैं अभी बताया था इन ए फैक्ट्री 3000 वर्कर्स आर देयर, हम अभी स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड टू द वेजेस हम निकालेंगे, तो हम चेक करेंगे कि जो हम 20 सपोज हम 20 वर्कर्स को ले लिए, इनका मीन वेज निकालेंगे, इनका मीन वेज। मगर स्टैंडर्ड डेविएशन से हमको क्या पता चलेगा कि बाय हाउ मच एक्चुअली डेली वेजेस ऑफ सैंपल वर्कर्स डेविएट फ्रॉम द मीन वेज। जो हम सैंपल में जो 20 वर्कर्स हम ले लिए, जो 20 वर्कर्स का जो वेजेस है वो कितना डेविएट कर रहा है मीन वेज में, तो वही तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता है। तो सिग्मा डी स्क्वायर यहां पर n माइनस वन लेना है। सपोज आप वर्कर्स 20 है तो n माइनस वन 19, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, यहां पर ओनली n नहीं लेना है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में n माइनस वन लेना है। तो उसका फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूला क्या है ना, सिग्मा डी स्क्वायर बाय n माइनस वन इट स्क्वायर रूट, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो d मीन्स क्या है, तो d मीन्स है डेविएशन, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, और जो n है जो सैंपल में जो लिया है, सपोज नंबर ऑफ पीपल हम जो लिया है, नंबर ऑफ पीपल, तो n माइनस वन लेना है, n ओनली नहीं लेना है, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन केस में। ठीक है, और नॉर्मल जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पर जो म्यू, ये जो है ना, ये म्यू है, ये इसको हम बोलते हैं म्यू। ठीक है, तो इसमें म्यू मीन्स मीन, यही है मीन। अब देखिए यहां पर जो म्यू है यही है पॉपुलेशन मीन, यही मीन है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में आप जब निकालेंगे वही है सेम थिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आपका सपोज डी, डेविएशन क्या है आपका, फर्स्ट में बता देता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर डेविएशन होगा ईच ऑब्जर्वेशन माइनस म्यू, म्यू मीन्स मीन, सेम थिंग है, म्यू मीन्स मीन, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये है डी। अच्छा, डी स्क्वायर, आप डी स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर क्या है ना, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ओके स्क्वायर। तो फर्स्ट आप ऑब्जर्वेशन दिया है, डेविएशन निकाल दीजिए, मीन निकाल दीजिए, डेविएशन निकाल दीजिए, डी स्क्वायर निकाल दीजिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन आप आराम से निकाल देंगे। इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर बाय n इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया है, फिर ये सब ऑब्जर्वेशन दिया है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स निकाल दीजिए, यहां पर मीन आप आराम से निकाल देंगे, मीन कितना है सिग्मा एक्स बाय एन, एरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए। तो मीन जो है वही म्यू है, मीन जो है वही म्यू है। अच्छा, यहां पर आप अभी डेविएशन निकाल दीजिए, डेविएशन एक्स माइनस मीन, जो मीन है वही म्यू है,
सेम थिंग, ठीक है। इसको निकाल दीजिए डी ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, फिर आप डी स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। फिर यहां पर डी स्क्वायर निकालने के बाद यहां पर आप सिग्मा डी स्क्वायर ऐड कर दीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर निकाल दीजिए। देन फॉर्मूला है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इट्स स्क्वायर रूट। ओके, क्लियर। मगर इसमें जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें n-1 लेना है, ये दो फॉर्मूला को याद रखना है। और यहां पर जो म्यू है वही है मीन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ओके, यू शुड नॉट बी इन कंफ्यूजन। ओके, अच्छा एग्जांपल भी है। सपोज देखिए यहां पर सपोज द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स गिवन, आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट आप मीन निकाल दीजिए। मीन कैसे ना, सम ऑफ द, यहां पर मीन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय एन, ये सब एक्स है, जो मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स एक्स है, ठीक है। और सिग्मा एक्स, तो यहां पर ये सबको ऐड कर दीजिए, 2 प्लस, ये नहीं है इसको हटा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो रहा है 18 24 30, सो 30 इट इज इक्वल टू 30 बाय 5 इट इज इक्वल टू 6, तो मीन हो गया, मीन मार्क हो गया 6, ठीक है। अच्छा मीन मार्क आने के बाद आप कैसे निकालेंगे? स्कोर दे दिया आप, यहां पर ये डेविएशन है डी है, ईच मार्क माइनस मीन मार्क, ओके। देन फिर डी स्क्वायर, ये जो डी निकल गया, जैसे यहां पर तो मीन 6 है, तो 2 माइनस 6, ये है 2 माइनस 6, ये 4 माइनस 6, ये 6 माइनस 6, तो ईच डेविएशन माइनस मीन, ओके। डी आ गया, फिर आप डी स्क्वायर निकाल दीजिए, -4 होल स्क्वायर 16, -2 होल स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, ऐसे निकाल दीजिए डी स्क्वायर। फिर यहां पर सिग्मा डी स्क्वायर निकाल दीजिए। सो सिग्मा डी स्क्वायर यहां पर जो हो रहा है 40 हो रहा है, ओके। यहां पर सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ओके। ये सबको आप ऐड कर दो, सिग्मा डी स्क्वायर 40, तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन आराम से निकाल देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इट्स स्क्वायर रूट, ओके। सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इट्स स्क्वायर रूट, क्लियर। तो वही है, तो यहां पर देखिए यदि सिग्मा डी स्क्वायर 40 है तो एन कितना है, हाउ मेनी स्कोर्स गिवन, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर, 5 स्टूडेंट्स, सो इट इज सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन, इट इज 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 2.83। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये शो कर रहा है कि बाय हाउ मच एक्चुअली द scores, in this case by how much actually the scores of students deviate from the mean, okay. So 2.83 less है, so यहाँ पर क्या है, the marks it is just around the mean score because the standard deviation is very low, so that it means scores of the students are not much deviate from the mean score because mean score is it is given 6, तो आपको इससे निकलना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजी है, तो ये डी है, ये डी स्क्वायर है, ओके। डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम मीन, ये डी स्क्वायर है, तो आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट ले जाइए, हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस एग्जामिनेशन में, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन, यदि वेरिएंस का बात बोलेंगे, वेरिएंस क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्टैंडर्ड देखिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिए, इट इज सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इट स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, जब स्क्वायर कर रहे हैं स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये वेरिएंस है सिंबल, स्क्वायर ऑफ द सिग्मा, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन, यही है वेरिएंस फॉर्मूला। ये जो सिग्मा स्क्वायर है यही है वेरिएंस, सो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा माने स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओनली स्क्वायर रूट को हटा दो। सो वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन, ठीक है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस है, तो ये है पॉपुलेशन वेरिएंस, ये जो म्यू है ये मीन है। तो मैं बता चुका हूं कि जो डेविएशन है, देखिए यहां पर याद रखिए जो डेविएशन है वो x माइनस ये जो म्यू है ये मीन है, ठीक है। ये डेविएशन यही है मीन है, इसको पॉपुलेशन मीन बोलते हैं, ये मीन है, कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
और सिमिलरली जब आप वेरियंस आप निकाल रहे हो, बहुत इजी है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। वेरियंस क्या है? स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ओनली स्क्वायर रूट को हटा दो। तो वेरियंस का फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन इट्स स्क्वायर रूट ए, सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। वेरियंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन बाई इट इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है स्क्वायर रूट दे रहे थे, स्क्वायर रूट को हटा दो। और बाकी सेम है, सैंपल वेरिएंस में स्क्वायर रूट को हटा दो, सैंपल वेरिएंस ए सम लेते हैं, ओके, स्मॉल एस। सो मगर सभी समय याद रखो, जब आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो वो n माइनस वन रहेगा, जो सैंपल में जितना आइटम्स है उसका -1 रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला को याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसको देख लो। फर्स्ट वन, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज पॉजिटिव वन, याद रखो, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं क्या कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया है, डेविएशन निकालेंगे, फिर स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। अच्छा, स्क्वायर हो गया मींस स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर ऑल्सो पॉजिटिव, तो यहां पर ये सभी समय पॉजिटिव होगा, ये सभी समय पॉजिटिव होगा। तो हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ऑब्वियसली सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इट स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव वन। अच्छा, नेक्स्ट वन, जीरो। स्टैंडर्ड डेविएशन कब जीरो होगा? जब जो आप देखिए एक डाटा है, इसमें ऑल आइटम्स आर सेम, ओके, तो इसमें मीन तो 5 होगा। देखिए यहां पर 5। अच्छा, इसमें आप मीन निकाल दो, मीन कितना होगा? सबको ऐड कर दो। 5 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स 25। हाउ मेनी आइटम्स? 5। मीन तो 5 होगा। अच्छा, यहां पर डेविएशन फ्रॉम मीन, आप जब डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, कि ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, तो जीरो होगा। यदि डी जीरो हो गया, डी स्क्वायर कितना होगा? जीरो होगा कि नहीं? हम क्लियर ऑन स्टूडेंट नॉट? तो तब हम सिग्मा डी स्क्वायर कितना होगा? सिग्मा डी स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ना? सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इट स्क्वायर रूट। तो सिग्मा डी स्क्वायर जीरो मीन जीरो होगा। तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कब जीरो होगा? व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल वन। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे एरिथमेटिक मीन में था। स्टैंडर्ड डेविएशन में जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को आपको लेना है। जैसे मीडियन में सभी ऑब्जर्वेशन को लेना जरूरत नहीं, ओनली मिड वैल्यू हम देखेंगे। और जैसे मोड है, मोड में देखेंगे किस ऑब्जर्वेशन का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मेनी टाइम्स ऑकर इन द डाटा। सपोज एक ऑब्जर्वेशन दिया है, हम देखेंगे कोई एक पर्टिकुलर नंबर वो 5 टाइम्स है डाटा में, तो वही हाईएस्ट द नंबर व्हिच ऑकर्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज मोड। मगर ये सब वो सब पोजिशनल है। मगर ये इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन केस में ईच एंड एवरी आइटम यू शुड कंसीडर इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे सपोज 3 cm की 5 cm की 8 cm, ऐसे आपका सेट में ऐसे आपका डाटा दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेजरिंग यूनिट रहेगा सेम रहेगा, वही cm में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है बहुत बड़ा है कि, और एक ऑब्जर्वेशन है बहुत छोटा है। जैसे मैं बता रहा हूं, इसका 10, 15, 20 देन 2000, ऐसे 4 ऑब्जर्वेशन देखो। 3 ऑब्जर्वेशन 10, 15, 20 बहुत कम है, मगर 2000 बहुत ज्यादा है, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्ट करता है, ठीक है। एक जो 4th ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा है। और वैसे ही अदर एक मैं बता रहा हूं, जैसे एक 5 है और सब है 200 है कि 300 है कि 1000 है, इसमें एक ऑब्जर्वेशन है बहुत कम है, ओके। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बहुत छोटा है, तो अदर सब देखिए 200, 300, 1000। तो इस केस में जो एक्सट्रीम है, एक ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है कि, और एक ऑब्जर्वेशन होता है उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है, तो इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्ट करता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है? आप एक डाटा लीजिए 10, 20, 30 स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल दिया। जैसे एग्जांपल को देखिए, डाटा दिया है 10, 20, 30 स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल दिया 8.16। अभी ईच ऑब्जर्वेशन में आप 5 ऐड कर दीजिए। 10 था 15 हो गया,
20 था 25 हो गया, 30 था 35 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालिए, सेम रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। तो आप ऐड कीजिए कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, याद रखिए, आप ऑब्जर्वेशन से कोई एक आर्बिट्ररी नंबर ऐड कीजिए कि कोई आर्बिट्ररी नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मगर स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनचेंज्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, याद रखो। ऑब्जर्वेशन से कोई आर्बिट्ररी नंबर ऐड करो, कोई आर्बिट्ररी नंबर ऐड करो कि कोई आर्बिट्ररी नंबर सब्ट्रैक्ट करो, मगर स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स सेम, सो इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। क्लियर? Similarly, next one, it is not independent of change of scale। आ गया चेंज ऑफ स्केल में दो चीजें, एक है मल्टीप्लाई और एक है डिवीजन। तो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस दिया है, जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, अच्छा अभी जो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आप जैसे था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या नॉर्मली, ये ओरिजिनल था स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अभी ईच ऑब्जर्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 2, ठीक है। एंड इफ ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी 10, ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 2, क्योंकि आप ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में 2 मल्टीप्लाई किया। तो इसमें याद रखो, जो चेंज, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में क्या है, आप कोई भी आर्बिट्ररी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो ईच ऑब्जर्वेशन में, ईच ऑब्जर्वेशन, यहां पर लिख दिया, ईच ऑब्जर्वेशन में आप कोई आर्बिट्ररी नंबर मल्टीप्लाई करो कि कोई आर्बिट्ररी नंबर डिवाइड करो। तो सेम केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, वो वही आर्बिट्ररी नंबर में मल्टीप्लाई होगा कि वही आर्बिट्ररी नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्मॉलर मीन्स आप जानते हो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या शो कर रहा है, ये एक स्पेशल एवरेज है स्टैंडर्ड डेविएशन। इट शोज दैट एक्चुअली बाय हाउ मच ऑब्जर्वेशंस डेविएट फ्रॉम द मीन वैल्यू, बाय हाउ मच ऑब्जर्वेशंस डेविएट और अपार्ट फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो स्मॉल होगा तो स्मॉल डेविएशन होगा, स्मॉल डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन वैल्यू। यदि लार्जर एसडी होगा, लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन, सो ऑब्जर्वेशंस आर इट मींस मोर अपार्ट, मोर डेविएट फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो इसमें लेस वेरिएबिलिटी रहेगा, इसमें मोर वेरिएबिलिटी रहेगा। अच्छा, इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प्स us determine which data set is more consistent or more variable, okay, more consistent or more variable। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर कंसिस्टेंट, ओके। इसमें एक चीज बता देता हूं, यदि जिस स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा वो मोर कंसिस्टेंट, याद रखो, मोर कंसिस्टेंट, लेस वेरिएबल, लेस वेरिएबल, ठीक है। और यदि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, हाई होगा, तो लेस कंसिस्टेंट, ठीक है, लेस कंसिस्टेंट, मोर वेरिएबल, मोर वेरिएबल, ठीक है। क्लियर? अच्छा, तो चलो यहां पर एक भाई उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप ए का मार्क्स है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ग्रुप बी का दिया है मार्क्स, स्टूडेंट्स का मार्क्स है 5 स्टूडेंट्स का मार्क, मीन सेम है मगर स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है। अब देखिए, ओके, दोनों का मीन सेम है, ग्रुप ए ग्रुप बी का मीन सेम है, ओके, मीन वैल्यू, मीन मार्क सेम है मगर स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग है। देखिए, जो ग्रुप ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, ओके, 1.41, ये क्या शो करता है, इस फ्रॉम दैट एक्चुअली वी हैव डिटेक्टेड दैट ऑब्जर्वेशंस आर लेस डेविएट फ्रॉम द मीन वैल्यू, ऑब्जर्वेशंस आर लेस डेविएट फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो यही जो है मोर कंसिस्टेंट, लेस वेरिएबल। मगर जो ग्रुप ये जो ग्रुप है, इसको थोड़ा मैं बता देता हूं, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ए है, क्योंकि ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन 1.41 है, तो ये मोर कंसिस्टेंट एंड लेस वेरिएबल, ग्रुप ए, ठीक है।
और उसका उल्टा होगा। यदि ग्रुप बी को हम देखेंगे, आप देखिए ग्रुप बी में दोनों का मीन सेम है, मगर ग्रुप बी में देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। तो जो ग्रुप बी को हम क्या बोलेंगे कि लेस कंसिस्टेंट मोर वेरिएबल, लेस कंसिस्टेंट मोर वेरिएबल। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों ग्रुप का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालकर आप चेक कर सकते हो। मोर कंसिस्टेंट कौन है, मोर कंसिस्टेंट लेस वेरिएबल कि लेस कंसिस्टेंट मोर वेरिएबल। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेस है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो उसको हम बोलेंगे मोर कंसिस्टेंट लेस वेरिएबल, और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो ये है लेस कंसिस्टेंट एंड मोर वेरिएबल। ठीक है, मगर देखिए मीन रिमेन्स सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। अच्छा, नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल शेप्ड कर्व, ओके, उसका जो परसेंटेज हम देखेंगे 68, 95, 99.7 रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड कर्व के ऊपर। ठीक है, उसको मैं क्लैरिफाई करता हूं। आप देखिए इसमें ये जो म्यू है ये मीन है, ठीक है, और आप देखिए इसमें सपोज म्यू मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इट मीन्स आप देखिए सपोज मैं यहां पर ले लिया कि मीन इज 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, तब परसेंटेज के ऊपर बताऊंगा। जो मीन है, मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो आप निकाल दीजिए मीन प्लस म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो रहा है 60, और मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कितना हो रहा है, वो कितना है 40। तो इसमें क्या है, जो 40 to 60 है इसी के अंदर कितना परसेंट स्टूडेंट्स है ना, 68.26%, 40 to 60 मार्क्स के अंदर। क्योंकि आप देखिए मीन है, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 34.13%, और मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 34.13%। ठीक है, तो हम जो बताया कि आपको कोई पूछेगा, जैसे मेरा एग्जाम्पल में दे दिया, यहां पर आप देखिए इसको क्लैरिटी, इसमें देखिए मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 34.13%, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 34.13%, तो टोटल है 68.26%। आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं कि म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, यही है ना कि मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन प्लस स्टैंडर्ड, ये जो परसेंटेज है यही है 68.26%, यही है ना। तो सपोज मेरा एग्जांपल में मैं मीन ले लिया 50 ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ले लिया, तो इसमें आप मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, कितना हुआ 60 मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, फिर आप म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, कितना हो गया 40। तो ये क्या बोल रहा है कि जो 40 to 60 मार्क्स, ये क्या है, जैसे मेरा एग्जांपल में मैं बोल दिया म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है ना। तो इसमें क्या है, मैं बोलूंगा 40 to 60 मार्क्स, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स है, ओके, हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली दे गॉट मार्क्स विद इन 40 to 60, इट इज 68.26%। इसको ऐसे हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो जो मीन प्लस मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में मीन दे दिया 50, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 10, तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 60 है, तो 50 to 60 हम देखेंगे, 50 to 60 मेरा एग्जांपल में 50 to 60 कितना है 34.13, और 50 to 40 कितना है 34.13, ठीक है, क्लियर। तो 40 to 60 कितना, 40 to 60 मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 60, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 40, तो 40 to 60 मार्क्स के अंदर कितना परसेंटेज स्टूडेंट है 68.26%, क्लियर, अभी क्लियर अंडरस्टूड। तो इसको आपको आप देख लीजिए, ये पार्ट है 68.26%। और और एक एग्जांपल देता हूं, आप देखिए इसमें सपोज आप चलिए मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, सपोज इसमें हम देखेंगे
टोटल है 95.44%, 95.44%। ये है सपोज मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका परसेंटेज है 95.44%। आप चेक कर दीजिए, देखिए टोटल मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज है। अच्छा, उसको कैसे हम एग्जाम्पल में कैसे, सपोज मैं अभी बताया था जैसे मीन है, मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो यहां पर आप निकाल दीजिए मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 70, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया 30, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, ओके। मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, ठीक है, तो मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 70 है, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 30 है, तो 30 to 70 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 30 to 70 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 95.44%, 95.44%। एक्चुअली मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 30 to 70 मार्क्स गॉट बाय 95.44%, ओके। तो इसको परसेंटेज को आपको याद रखना है पूरा थॉरोली। अच्छा, वैसा और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका दे दिया कि मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका परसेंटेज दे दिया 99.72%। आप देखिए ये दे दिया मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सपोज मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, आप यहां पर निकाल दीजिए मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3, ये 80 हो जाएगा, और आप निकाल दीजिए मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 to 80 मार्क्स के अंदर, 20 to 80 मार्क्स के अंदर कितना है 99.72%। तो ये परसेंटेज को याद रखना है, ठीक है, क्लियर। ये जो मैं जो एग्जांपल बताया, आप मुझे लगता है क्लैरिटी रहेगा, आपका समझ में आएगा। तो और ये परसेंटेज को देखिए, यहां पर देखिए मीन टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 34.13%, फिर एक अनदर स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कीजिए 13.5%, सपोज इसमें देखिए इसमें 34.13%, फिर आप चलेंगे कि मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 13.5%, फिर जाइए मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज 2.14%। तो सिमिलरली, अच्छा इसको नॉर्मल शेप क्यों बोलते हैं, ये भी आपका, ये देखिए इसमें आपका ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, यहां पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये मीन दिया है, तो उसका राइट साइड में जितना परसेंटेज है उसका लेफ्ट साइड में उतना ही परसेंटेज है। अब देखिए, तो जो डिवाइड किया है वो इक्वली डिवाइड किया है परसेंटेज बेसिस में, राइट साइड में जितना परसेंटेज है लेफ्ट में उतना ही परसेंटेज है उसका, इसका एरिया जो है, इसका राइट साइड एरिया, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो मीन लाइन है, एवरेज लाइन है, उसका राइट साइड जितना एरिया आएगा लेफ्ट साइड में उतना एरिया आएगा, राइट साइड में जितना परसेंटेज आएगा लेफ्ट साइड में उतना परसेंटेज आएगा। इसी को हम बोलते हैं एल शेप कर्व। और उसमें कुछ आप आइडिया ले जाइए, वैसे ही आपको सपोज कोई बोलेगा कि मीन इसमें कितना परसेंटेज आएगा, मीन टू मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप दोनों को ऐड करो 34.13 प्लस 13.59, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 47.72। तो ऐसे भी आपको याद रखना है, ओके, क्योंकि मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 34.13%, देन मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन प्लस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज 13.5%। तो ऐसे आपको पूछेगा तो आप ऐड कर सकते हो। वैसे आपको कोई पूछेगा, सपोज क्वेश्चन आएगा कि मीन टू मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितना होगा, तो आप परसेंटेज को ऐड कर दो, परसेंटेज को ऐड कर से 34.13 मीन टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, देन प्लस 13.59, देन प्लस 2.14। तो वैसे ही राइट साइड में जैसे लेफ्ट साइड में वैसे ही आएगा, ठीक है, क्लियर। तो उसको आपको ध्यान देना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है ना, आपको ये तीनों चीज को मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन जो आता है
68.26%। मैं इसको एग्जाम्पल में क्लैरिफाई कर चुका हूं। फिर आपका देखिए यहां पे और एक बार लिख देता हूं, फास्ट में लिखता हूं कि मीन म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें आता है 68.26%। देन सेकेंड आएगा म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में 95.44%। और ये सेकेंड वन। थर्ड वन मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा 99.72%। प्लस माइनस मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसे परसेंटेज के ऊपर आता है। मगर ये पूरा बेल शेप कर्व को आपको याद रखना है, और इसको मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी बता दिया आपको कैसे देखना है, ठीक है। तो और एक बार बता देता हूं, जैसे मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप बोलेंगे ये इसको क्लैरिफाई कीजिए अच्छे से, 60.26% क्या है ये। ओके, सपोज मेरा एग्जांपल में मैं मीन ले लिया 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया 10, तो आप अभी मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, ये हो गया 70, और मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, ये हो गया 50। तो इट मींस 50 टू 70 के अंदर कितना, 50 टू 70 में कितना मार्क्स ले जाइए, 50 टू 70 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट, 68.26% स्टूडेंट्स गॉट 50 टू 70 मार्क। ये ऐसे हम उसको क्लैरिफाई करेंगे, 50 टू 70 मार्क्स एक्चुअली गॉट बाय 68.26%। तो इसे आप देख लीजिए, इसमें 6 सेक्शन है। अच्छा एग्जाम्पल आप थोड़ा देख लीजिए, एग्जाम्पल भाई मैं जो क्लैरिफाई किया, जैसे मीन 60 मार्क्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 मार्क्स है, तो आप यहां पर ये एरिया को आप देख रहे हो, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये परसेंटेज कितना है ना, 68.26%, क्योंकि मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है 34.13%, और मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका सेम 34.13%, तो दोनों मिलाकर 68.26%। तो यहां पर आप निकालेंगे, जैसे मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, आप मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। तो यहां पर मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इसमें देखिए मीन 60 मार्क्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 मार्क्स है, तो मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए 50 मार्क्स है, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए 70 मार्क्स है। तो हम देखेंगे 50 टू 70 मार्क्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 50 टू 70 मार्क हाउ मेनी स्टूडेंट्स, परसेंटेज हिसाब से 68.26%। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, क्लियर। तो वैसे ही यहां पर निकाला है मीन प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसी एग्जांपल से आप निकालिए। ओके, तो मीन प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 95.44%, और मीन प्लस माइनस थ्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज 99.72%, ठीक है। तो इसका 6 सेक्शन से, ये 6 सेक्शंस को, कर्व इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। ओके, आप देख लीजिए, फर्स्ट यहां पर आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन 30 फ्रॉम, देखिए ये दिया है फ्रॉम, ये लेफ्ट साइड पार्ट में आपका मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, जो है मीन टू, ये क्या बोल रहा है कि ये मीन टू मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि मीन टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 34.13%, ये भी 34.13%, ठीक है। तो वैसे ही सब ऐसे 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। यहाँ पे बेल शेप कर्व देखिए 6 पार्ट्स है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए ये फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, और वैसे लेफ्ट साइड में आइए, ये तो ये एवरेज लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये वैसे 1 2 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, इसे 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पूरा परसेंटेज के बेसिस में आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। उसी को मैं यहां पर ऐसे मेंशन कर दिया। तो यहां पर एक लास्ट सेंटेंस देखिए, बिकॉज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, द परसेंटेज ऑन द लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल। इसका जो परसेंटेज है लेफ्ट राइट में इक्वल है, राइट में जितना परसेंटेज है लेफ्ट में उतना परसेंटेज है, ठीक है।
और इसमें और एक चीज मैं बता देता हूं, आप देखिए सपोज इसका बियॉन्ड में आप बोलेंगे सपोज इसका परसेंटेज कितना होगा बियॉन्ड मीन म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका बियॉन्ड में कितना रहेगा, क्योंकि बियॉन्ड में ओनली रहेगा 0.28%, क्योंकि आपका आप एरिया देख लीजिए मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ये है 99.72%, ठीक है नहीं। इसको देखिए यहां से यहां तक, अब देखिए यहां से यहां तक कितना है 99.72%, मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन प्लस थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसमें कितना एरिया है 99.72%। मैं बोल रहा हूं बियॉन्ड मीन प्लस माइनस 3 टाइम्स थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज ओनली 0.2 बियॉन्ड बाद में, ओके 0.28%, क्योंकि मीन प्लस माइनस थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज 99.72%। उसका क्वेश्चन आ सकता है बियॉन्ड में 0.28%, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन आएगा सपोज उसका बियॉन्ड में कितना रहेगा, सपोज ये क्वेश्चन पूछेगा इसका, सपोज ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसका मैं यहां पर लिख दिया बियॉन्ड में कितना परसेंटेज रहेगा। अच्छा आप देख लीजिए जो प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज है 95.44%, देखिए ये एरिया मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू ये जो एरिया है ये 95.44%, और बाकी उसका बियॉन्ड में कितना रहेगा आपका रहेगा 4.56% रहेगा, 4.56% बियॉन्ड में रहेगा, ठीक है। तो वैसे आपको पूरा ये बेल शेप कर्व को याद रखना है। चलो ठीक है, एग्जांपल्स दे दिया, कर्व डिवाइड इनटू 6 सेक्शंस दे दिया, इसको सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल क्यों है ना, जो एवरेज लाइन है उसका राइट में जितना परसेंटेज है लेफ्ट में उतना परसेंटेज है, ठीक है। बाकी अब देखेंगे जेड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर को जाएंगे, 2 स्टैंडर्ड स्कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट वन इज जेड स्कोर एंड अनदर वन इज टी स्कोर। अच्छा अभी हम जेड स्कोर को डिस्कस करेंगे। आप देखिए जेड स्कोर का जो फॉर्मूला है ये है आपका रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर माइनस मीन म्यू माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला है। एक्स जो है रॉ स्कोर है, जो म्यू है वही मीन है पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। हम इसमें देखेंगे कि जो अच्छा ये जेड स्कोर क्या बोल रहा है, जेड स्कोर आपको क्या शो कर रहा है, जेड स्कोर ये बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ओके, बोथ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस ए रॉ स्कोर लाइज अबव और बिलो द पॉपुलेशन मीन, कितना स्टैंडर्ड डेविएशंस मीन से ज्यादा है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कम है, उसी को पूछ रहा है। सपोज देखो देखो एक एग्जांपल देता हूं, सपोज जैसे जेड स्कोर आ गया +1, तो +1 मीन्स जो रॉ स्कोर है, रॉ जो स्कोर है वो हो जाएगा मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन्स 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन द मीन, ठीक है। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो उसको एक एग्जांपल हम देंगे, एग्जांपल से मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। जैसे आपका यहां पर जैसे जेड स्कोर आ गया, सपोज -2 आ गया, तो जो रॉ स्कोर होगा, रॉ स्कोर क्या होगा ना, मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन्स 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन, 2 ये मीन है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन जो रॉ स्कोर होगा। तो भाई जेड स्कोर क्या शो करेगा, जेड स्कोर में आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस मोर देन मीन और हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस लेस देन मीन, तो उसको एग्जांपल से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो जेड स्कोर समझ में आया, तो मैं बोलूंगा कि जेड स्कोर ये शो कर रहा है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस मोर देन मीन, और सिमिलरली हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस लेस देन मीन, यही इसी जेड स्कोर से हम पता करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया? अभी एग्जांपल देखने से और क्लैरिटी आ जाएगा। आप देखिए एग्जांपल, स्टूडेंट स्कोर है 80, मीन स्कोर है 70, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, तो जेड स्कोर निकालो। अच्छा जो स्टूडेंट का स्कोर है 80 है, ठीक है, ये x है, फॉर्मूला में हम x है, माइनस मीन स्कोर क्या है 70, तो ये म्यू है, ये मीन स्कोर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5,
आप निकाल दो, ये कितना होगा 2 हो गया। ओके तो +2। ओके +2 मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे ना, तो स्कोर को आप देखो, स्कोर इज इक्वल टू मीन स्कोर प्लस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन। सेम थिंग हुआ, मीन स्कोर कितना है, मीन स्कोर आपका 70 है, ये कितना है, मीन स्कोर 70 है, और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 5 है, तो 2 × 5। अच्छा रॉ स्कोर 80 हो रहा है कि नहीं, रॉ स्कोर 80 हो रहा है कि नहीं। तो इसको जो यहां पर जो जेड स्कोर क्या बता रहा है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस मोर देन द मीन। ओके तो आपका जेड स्कोर कितना हुआ +2, जेड स्कोर कितना हुआ +2, तो +2 मीन्स व्हाट, +2 मीन्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड। अच्छा मैं बता चुका हूं कि जेड स्कोर क्या शो कर रहा है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस मोर देन मीन, कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। तो यहां पर जो जेड स्कोर +2 है मीन्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव मीन, सो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। आप देखिए ना, मीन 70 है और प्लस 2 × 5 करके आप निकाल दीजिए, रॉ स्कोर आ गया 80, है कि नहीं, क्लियर। तो ये एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल हम देखेंगे माइनस में। अच्छा बिलो द मीन के ऊपर देखिए, बिलो द मीन के ऊपर देखिए, मीन स्कोर ये आपका स्कोर है, रॉ स्कोर 1 से, मीन स्कोर म्यू है 70 है, यहां पर जो है नेगेटिव होगा क्योंकि आपका जो रॉ स्कोर है लेस देन द मीन। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। अभी फॉर्मूला निकालिए, फॉर्मूला डालिए, जेड इज इक्वल टू आपका स्कोर है 60, मीन स्कोर है 70, क्योंकि रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितना हो गया -2 हो गया। अच्छा -2 मीन्स हम उसको रॉ स्कोर होगा मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। भैया जेड स्कोर क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा माइनस हो रहा है जेड स्कोर। अच्छा माइनस मीन्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन, माइनस में हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। यदि प्लस होगा जेड स्कोर, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। तो यहां पर जेड कितना हुआ -2 हुआ, तो -2 मीन्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। तो हम इसको सिंबलिकली ऐसे लिखेंगे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। अब अच्छा कैलकुलेट कीजिए, ये रॉ स्कोर है, अच्छा रॉ स्कोर अभी 60 हो रहा है कि नहीं, आपका मीन कितना है 70 है, और -2 × स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन को देखिए, ओके कितना हो रहा है यहां पर 60 हो रहा है कि नहीं, रॉ स्कोर 60 हो रहा है कि नहीं। तो भाई तो जेड स्कोर जो है वो यही बता रहा है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। यदि प्लस होगा जेड स्कोर, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन, और जो यदि नेगेटिव होगा, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। यहां पर देखिए एक सभी रॉ स्कोर निकालिए, तो यहां पर रॉ स्कोर को मैं बोलूंगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये देखिए इसको 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन, क्योंकि -2 हुआ जेड स्कोर। तो हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। आप देखिए आपका जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसको पुट कीजिए, मीन 70 है, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, -2 × 5 60, रॉ स्कोर 60 हो रहा है कि नहीं, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, आप इसको देख लीजिए सिंबलिकली कैसे जेड स्कोर को। अच्छा जेड स्कोर आपका देखिए +3 है, +3 मीन्स जेड स्कोर 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन, +2 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये है मीन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको क्या लिखेंगे, मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, +1 मीन्स मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। और एग्जैक्टली सपोज आपका देखिए जो रॉ स्कोर होगा वो इक्वल टू मीन होगा, दोनों समान हो जाएगा। दोनों समान होने से, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, रॉ स्कोर माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जो रॉ स्कोर है वही मीन स्कोर है, तो यहां पर तो 0 हो जाएगा ना। यहां पर मैं ऑप्शन बताया, जो रॉ स्कोर है वही है, रॉ स्कोर मीन वैल्यू के साथ समान है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जेड स्कोर 0 हो जाएगा। तो जेड स्कोर 0 होगा मीन्स एग्जैक्टली सेम, यही है सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट सभी समय याद रखिए, जेड स्कोर में 0 होगा, जो एवरेज होगा, जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो 0 होगा जेड स्कोर का स्केल में। ये जो बता रहा हूं, ये जोड़ ये स्केल है। अच्छा -1 क्या है ना, इट मीन्स मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 क्या है, मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3 क्या है आपका म्यू -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको कैसे रीड करेंगे, जैसे म्यू माइनस स्टैंडर्ड माने मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। तो जेड स्कोर का जो स्केल है यही है। स्केल क्या है, मिडिल में 0 है। आप देखिए स्केल को मैं बता देता हूं,
जीरो है, यही है सेंट्रल पॉइंट। देन -1 -2 ऐसे आएगा, ये 1 2 ऐसे आएगा। तो ये जीरो है सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि यहां पर आपका जेड स्कोर जीरो है। जेड स्कोर कब जीरो है ना, जब आपका रॉ स्कोर इक्वल टू मीन स्कोर। ओके, और ये जो 1 है, ये 1 का मतलब क्या है ना, मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। 2 क्या है ना, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। -1 क्या है आपका मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। -2 क्या है ना, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव मीन। अच्छा, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव द मीन। अच्छा, नेगेटिव में आइए, -1 मीन्स व्हाट, म्यू, मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, इट मीन्स 1 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द मीन। -2 मीन्स 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस बिलो द मीन। तो ये स्केल है, तो सेंट्रल पॉइंट जीरो है, याद रखिए जेड स्कोर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो टी स्कोर के ऊपर देखेंगे। अच्छा, ये टी स्कोर जेड स्कोर में क्या अंतर है? देखिए, जेड स्कोर क्या है, कभी कभी नेगेटिव, आपका टी स्कोर का जो फॉर्मूला है वो क्या है ना, जेड स्कोर इंटू 10, ओके, प्लस 50। कभी कभी क्या है, सपोज जेड स्कोर नेगेटिव हो सकता है, और जेड स्कोर फ्रैक्शन हो सकता है, और फ्रैक्शन आ सकता है डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो इस केस में जो टी स्कोर हम निकालेंगे, वो क्या करेगा, जो जेड स्कोर में इसमें जो नेगेटिव कभी हो रहा था वैल्यू, फ्रैक्शन हो रहा था, डेसिमल ये था, उसको डिस्कार्ड करने के लिए टी स्कोर आ गया। ठीक है, तो टी स्कोर क्या करता है, जो जेड स्कोर में जो नेगेटिव हो रहा था कि डेसिमल में आता था, अभी टी स्कोर उसको डिस्कार्ड किया, टी स्कोर उसको रिमूव किया, वही है। ठीक है, टी स्कोर इज ए ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ ए जेड स्कोर। इट चेंजेस द जेड स्कोर इनटू ए स्केल दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट जनरली अवॉइड्स नेगेटिव नंबर्स एंड डेसिमल वैल्यूज। देखिए, सपोज एक एग्जांपल में दे देता हूं, इसमें आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपका रॉ स्कोर 60 है, और आपका जो मीन है भाई म्यू है, ये 75 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10 है। आप जेड स्कोर निकालो, जेड स्कोर अभी निकालो, ये 60 रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा माइनस, नेगेटिव तो होगा, क्योंकि नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि मीन स्कोर ज्यादा है, मीन स्कोर ज्यादा है, तो -1.5 होगा, -1.5 होगा। तो इसको नेगेटिव को, डेसिमल को हटाने के लिए टी स्कोर आ गया। आप समझ रहे कि नहीं, नेगेटिव और डेसिमल को हटाने के लिए टी स्कोर आ गया। तो ये और थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग में देखिए, अभी सपोज आपका जेड हो गया, जेड स्कोर हो गया -1.5। अच्छा, अभी टी स्कोर निकालो, टी स्कोर क्या है ना, जेड स्कोर इंटू 10 प्लस 50। अच्छा, -1.5 इंटू 10 प्लस 50, तो ये हो गया आपका कितना हो गया, 35 हो गया, क्योंकि -1.5 इंटू 10 कितना हो गया, -15 प्लस 50, 35 पॉजिटिव। तो टी स्कोर नेगेटिव को हटाया और डेसिमल को भी हटाया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यदि जेड स्कोर जीरो होगा, सपोज मैं बोला था सेंट्रल पॉइंट जेड स्कोर जीरो होगा, टी स्कोर कितना होगा, 50 होगा। तो इसमें दोनों में याद रखिए, जो जेड स्कोर में जो सेंट्रल पॉइंट जो है जीरो है, टी स्कोर में सेंट्रल पॉइंट 50 है। आप समझ रहे कि नहीं, जेड स्कोर जीरो, ये जो सेंट्रल पॉइंट का बात आ रहा है, तो सेंट्रल पॉइंट याद रखो, जेड स्कोर में जीरो है तो टी स्कोर में 50 है, क्योंकि जेड स्कोर जब जीरो होगा, टी स्कोर कितना होगा, 50 होगा। अच्छा, जेड स्कोर कब जीरो होगा, जब रॉ स्कोर मीन स्कोर के साथ समान होगा, और जेड स्कोर जब जीरो होगा, टी स्कोर 50 होगा। तो जेड स्कोर में आपका सेंट्रल पॉइंट जीरो है, तो टी स्कोर में सेंट्रल पॉइंट क्या है, 50 है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और थोड़ा क्लैरिटी देखिए, सपोज यहां पर दे दिया जेड इज इक्वल टू +2, तो आप टी स्कोर 70 होगा, क्योंकि इस देखिए जेड स्कोर जीरो से इसका सेंट्रल पॉइंट, ये जेड स्कोर का, मैं इसको थोड़ा और क्लैरिटी देता हूं। जो जेड स्कोर का जो स्केल है वो ये है कि -3 और एक बार थोड़ा क्लैरिटी देता हूं। जेड स्कोर में आपका जैसे -3 -2 -1, ये सेंट्रल पॉइंट आ गया जीरो, फिर 1 2 3,
तो ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सीपी में लिख दिया, ये सेंट्रल पॉइंट है। तो वैसा ही आपका टी स्कोर में सेंट्रल पॉइंट 50 है, 50, 60, 70 ये सेंट्रल पॉइंट है टी स्कोर में, ये सेंट्रल पॉइंट, ये 40, ये 30, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट 50 है। क्योंकि आप जानते हो जब जेड स्कोर 0 होगा, जब जेड स्कोर 0 होगा, टी स्कोर कितना होगा, 50 होगा। फॉर्मूला डालकर देखिए ना, ठीक है। तो जेड स्कोर में सेंट्रल पॉइंट 0 है, तो टी स्कोर में सेंट्रल पॉइंट कितना है, 50 है। तो वैसा ही आप देखिए, बहुत इजी है। जब जेड स्कोर +1 होगा, टी स्कोर 60 होगा, उसमें 10 ऐड कर दीजिए। जब जेड स्कोर +2 होगा, तब टी स्कोर 70 होगा, ठीक है। आप देखिए इसमें दे दिया जेड इज इक्वल टू +2, अब टी स्कोर 70। तो याद रखिए, तो जब जेड स्कोर 0 होगा, टी 50 होगा, ये स्टार्ट। सपोज जब ये 1 होगा, ये 60 होगा। जब जेड स्कोर 2 होगा, ये 70 होगा टी स्कोर। और नेगेटिव में आइए, नेगेटिव में आइए, सपोज जेड स्कोर -1 होगा, तो ये 40 होगा। अच्छा, जब जेड स्कोर -2 होगा, ये 30 होगा टी स्कोर। तो इजी हो गया आपको। तो ये जेड स्कोर में सेंट्रल पॉइंट 0 है, टी स्कोर में सेंट्रल पॉइंट 50 है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप देखिए, वही रिलेशनशिप में बता दिया। जब जेड स्कोर 0 है, टी स्कोर, यही है सेंट्रल पॉइंट। जब जेड स्कोर 0 है, टी स्कोर 50 है। जब जेड स्कोर 1 है, आपका टी स्कोर 60 है। जेड जब 2 + 2 है, टी स्कोर 70 है। जेड जब -1 है, टी 40 है। ओके, तो जब जेड -2 है, टी 30 है। तो इसका सेंट्रल पॉइंट को देखिए ना, जब जेड स्कोर 0 होगा, तब टी स्कोर 50 होगा। तो जेड स्कोर का सेंट्रल पॉइंट 0 है, तो टी स्कोर का सेंट्रल पॉइंट 50 है। तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। कोई बोल देगा कि इसी एग्जांपल में, जैसे जेड -4 है, जेड -4 है, तो टी कितना होगा, 10 होगा। -40 माइनस कर दीजिए। अच्छा, कोई बोलेगा कि जेड +4 है, जेड +4 है मीन्स टी कितना होगा, टी होगा 90 होगा, 50 + 40, ठीक है। चलो, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टी स्कोर मूव्स द सेंटर फ्रॉम 0 to 50 एंड चेंजेस ईच एसडी फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, 0 to 50 में बताया था, जैसे जेड स्कोर का सेंट्रल पॉइंट 0 है, तो सेंट्रल पॉइंट टी स्कोर का कितना है, 50 है। तो फर्स्ट उसको देखेंगे, आप यहां पर देखिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड द जेड स्कोर। जेड स्कोर जब 0 होगा, देखिए 1 SD, सपोज मीन इज इक्वल टू 0, ये मैं बताया था जेड स्कोर कब 0 होगा। जेड स्कोर कब 0 होगा ना, जब आपका रॉ स्कोर मीन स्कोर के साथ, मीन के साथ समान होगा, ठीक है। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। जब जेड स्कोर +1 है, +1 मीन्स क्या है, मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 SD above mean +2, 1 SD above, 1 SD below mean -1, 2 SD below, इसको सब डिस्कस कर चुका हूं। तो स्केल में बता चुका हूं, ये स्केल है, 0 इज द सेंटर। जेड स्कोर का सेंटर 0 है, और ये जो +1 है, ये मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। +2 क्या है, मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, -1 क्या है, मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। -2 क्या है, मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। जेड स्कोर तो वही बता रहा है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड, पॉजिटिव केस में हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव मीन, नेगेटिव केस में हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो मीन। और सेंटर जो है 0 है। और कब, अच्छा, जेड स्कोर कब 0 होगा ना, जब आपका रॉ स्कोर मीन के साथ समान हो जाएगा, ठीक है। चलो, स्केल के ऊपर क्लियर हो गया, जेड स्कोर में सेंट्रल पॉइंट 0 है। अच्छा, नेक्स्ट चलिए, नाउ कन्वर्ट। अच्छा, टी स्कोर को हम कन्वर्ट करेंगे। टी स्कोर जब देखिए, जब जेड में बता चुका हूं, जेड स्कोर जब 0 होगा, टी स्कोर कितना होगा, 50 होगा, ये सेंट्रल पॉइंट। तो जेड स्कोर में सेंट्रल पॉइंट 0 है, टी स्कोर में सेंट्रल पॉइंट क्या है, 50 है। तो वही है 0 to 50। जो जेड का जो 0 है, टी का वो 50 है। जो जेड देखिए, जो जेड का 1 है, +1, तो वो टी स्कोर में कितना होगा, 60 होगा। जब जेड +2 होगा, तब टी स्कोर कितना होगा, 70 होगा। तो इट मीन्स, इससे क्या पता चलता है कि देखिए, इसमें हम बता देंगे, ये है जेड स्कोर, हम बताएंगे कि मीन म्यू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। ताने 1 स्टैंडर्ड, जेड इज इक्वल टू यहां पर क्या है, +1 है, तो यहां पर टी स्कोर कितना होगा, 60 होगा। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई जेड स्कोर इज इक्वल टू, यहां पर सपोज ये है
जेड स्कोर है +2 है, तो +2 है मीन्स हमारा रॉ स्कोर हम कैसे डिफाइन करेंगे ना, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, ये है ना। और यहां पर टी स्कोर कितना होगा, यहां पर टी स्कोर 70 होगा, जब जेड इज इक्वल टू +2 होगा टी स्कोर 70 होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है ना, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10 होगा टी स्कोर रिलेटेड में। इसमें जो जेड स्कोर में जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है वो टी स्कोर में 10 है। जैसे हम बता रहे हैं जेड स्कोर में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टी स्कोर में 10 है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर जेड स्कोर में 20 है, इसे आपको कैलकुलेट करना है। और जो जेड स्कोर में जो 0 है, जेड स्कोर में जो 0 है टी स्कोर में वो क्या है 50 है। अच्छा, और एक देखिए, सपोज कोई बोल दिया जेड स्कोर -1, तो इट मीन्स रॉ स्कोर क्या होगा ना, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन। जेड स्कोर -1 मीन्स उसका एग्जाम्पल में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर रॉ स्कोर होगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन, ये होगा ना। जैसे देखिए जेड, सपोज यहां पर आके रॉ स्कोर 50 है और मीन जो है 60 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, आप जेड स्कोर निकालिए। आप यहां पर जेड स्कोर क्या होगा -1 होगा, फॉर्मूला दीजिए, रॉ स्कोर माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला है ना जेड स्कोर का। अच्छा, तो अभी रॉ स्कोर निकालिए, यहां पर जेड स्कोर कितना हो गया -1 हो गया, तो आप रॉ स्कोर निकालिए, रॉ स्कोर क्या होगा ना, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो मीन ना, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन, क्योंकि जेड स्कोर -1 है तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन। अभी आप निकालिए, आपका मीन कितना था, मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में मीन 60 था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 था, तो कितना हो रहा है रॉ स्कोर 50 हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था, रॉ स्कोर 50 था कि नहीं, तो इसको आपको याद रखना है। जो ये 1 SD, सपोज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो जेड स्कोर में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो टी स्कोर में वो 10 है, टी स्कोर में वो 10 है, याद रखिए। और वैसे मल्टीप्लाई करते जाइए, सपोज इसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो टी स्कोर में 20 है, ठीक है। तो यहां पर टी स्कोर में 50 इज द न्यू सेंटर। और सेम थिंग यहां पे कन्वर्ट कर दिया, चेंजेस 1 SD इंटू ए 10 टी स्कोर। देखिए इसमें जेड स्कोर का स्केल है 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये इसको क्या बोलेंगे ना, मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको क्या बोलेंगे ना, मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें टी स्कोर में ये 50 होगा, तो जो यहां पर 1 है ये 60 होगा, ये जो 2 है ये 70 होगा, ये 3 है ये 80 होगा, -1 है 40 होगा, -2 है कितना होगा 30 होगा, -3 है 20 होगा, लाइक दिस। ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल, जेड स्कोर का सेंट्रल पॉइंट 0 है, टी स्कोर का सेंट्रल पॉइंट 50 है वैसे। तो यहां पर जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10, जो आपका जेड स्कोर में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वो टी स्कोर में 10, वैसे कैलकुलेट करके आप जाइए, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन मैं बोला था 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द पैरामीटर्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसका पैरामीटर है मीन इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। याद रखिए, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है आपका मीन जो है 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द बेल शेप कर्व को आप देखिए, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डाटा दैट फॉल्स बिटवीन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। माने एक बेल शेप कर्व था, मैं बताया था, ये जो बेल शेप कर्व था, यहां पर ऐसे जो बेल शेप कर्व था, ये जैसे मीन है और इसमें आपका था मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन ऐसे था। तो इसमें 13 पॉइंट ये जो था आपका मीन टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, आप बेल शेप कर्व देखिए, ये कितना था 34.13 था %। और जब आप जाएंगे मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, अनदर स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कीजिए, तो इसमें जो परसेंटेज था वो 13.59% था।
था कि नहीं? तो यही है, तो इसी के डिस्टेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा है। आप बेल शेप कर्व में डिस्कस कर चुका हूं। तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें जो परसेंटेज है 13.5% है। ठीक है, एक राइट साइड को मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर ये जो है प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें एक्चुअली है 34.13% है। फिर नेक्स्ट आप मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें आ जाएगा 13.59%। फिर आ जाएगा मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा 2.14%। ये राइट साइड है, ये सब पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट वही है, आप नेगेटिव पार्ट को जाएंगे, नेगेटिव पार्ट को जाएंगे, जैसे मीन टू मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 34.13% है। वैसे मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा 13.59%। और आप जाएंगे मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा 2.14%। तो इसको मैं बोल चुका हूं। तो उसमें आप बेल शेप कर्व देख लीजिए, यहां पर आंसर डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यूज लाई बियॉन्ड 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस। मैं बताया था बियॉन्ड 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन, लेस देन मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रेटर देन मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं बताया था ये प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी में पूरा एरिया में कितना था, 99.72% था। अच्छा, इसका बियॉन्ड कितना रहेगा, ये जो था इसी के एरिया के अंदर कितना था, 99.72 था, इसका बियॉन्ड कितना रहेगा, 0.28। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बेल शेप आप करेंगे, सपोज आप बेल शेप करके करेंगे, ये मीन लाइन दे दिया, सपोज ये है आपका, ये म्यू है, मीन है, ये जो है मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर यहां पर आ जाइए मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इसी के अंदर एरिया कितना है, 99.72 है कि नहीं, 99.72। तो उसका बियॉन्ड में 0.28, उसका बियॉन्ड कितना आएगा, 0.28। ठीक है, परसेंटेज। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, what is the cumulative percentage of data that falls strictly below mean plus 2 standard deviation in case of normal distribution bell shaped curve। देखिए below means आपका ये होता है ना, सपोज ये बेल शेप कर्व है, ये मीन है, और इसका बिलो पूछा है, सपोज ये जो है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके नीचे में पूरा आएंगे, यहां तक तो 50% आ जाएगा, लेफ्ट साइड पूरा 50%, लेफ्ट साइड 50% आ गया। तो राइट साइड को देख लीजिए, ये इसके अंदर कितना आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 47.72। आप ड्रॉ करके देखिए, ये आ जाएगा आपका 97.72%, क्योंकि वो बोला है बिलो, इसके बिलो। तो जो नेगेटिव पार्ट है, ये देखिए, ये जो लेफ्ट साइड पार्ट है, लेफ्ट साइड में तो 50% आ जाएगा, और राइट साइड में आपका इसके अंदर कितना है, मीन प्लस मीन टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 34.13, फिर मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 13.59। तो इसके अंदर जो आ रहा है 47.72 और इसके 50%, तो उसका बिलो पूछा है, बिलो पूछा है मींस 97.72। आप ड्रॉ करके देखिए, आप ड्रॉ करके परसेंटेज बेसिस पे देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ए जेड स्कोर मेजर्स। अच्छा, जेड स्कोर क्या बोलता है, जेड स्कोर बहुत बढ़िया से आपको बता दिया। सपोज जेड स्कोर आप बोल रहे हैं कि जेड स्कोर है -2, तो ये क्या है ना, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन, ये एक स्कोर आप जब निकालेंगे, ये आपका स्कोर है, ये आपका नॉर्मल स्कोर है। 2 स्टैंडर्ड, यहां पर जेड इज -2 मींस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन, ना 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। ये जेड स्कोर बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। सपोज आपका जेड स्कोर +3 है, तो इट मींस आपका जो स्कोर होगा
वो एग्जाम्पल आप लेके देखिए, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन, ये मीन है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। वही जेड स्कोर प्लस 3 मीन्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। वही हमको रॉ स्कोर मिलेगा, स्कोर मिलेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला डाल के आप देखिए वो आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज रॉ स्कोर 50 है और आपका मीन स्कोर 60 है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो जेड स्कोर निकालिए। आपका रॉ स्कोर माइनस मीन, रॉ स्कोर माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज इक्वल टू -1 हो रहा है। तो -1 मीन्स आप कैसे रॉ स्कोर, आप देखिए इसको मैं बोल गया, इसको कैसे हम दिखाएंगे, देखिए देखिए जेड इज इक्वल टू -1, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, तो रॉ स्कोर इज इक्वल टू मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। आप कैलकुलेट करके देखिए, पूरा एक्यूरेट आ जाएगा, 50 आएगा। इसमें डालकर देखिए, आपका मीन है 60 है, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, 50 आ रहा है कि नहीं, ये आपका 50 आएगा। तो -1 मीन्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर दिया है। ठीक है, गिवन ए पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन 70 है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिया है, जेड स्कोर, आप जेड स्कोर फॉर ए न्यू स्कोर 85 दिया है। व्हाट इज द जेड स्कोर, यहां पर जेड स्कोर आप निकालेंगे। तो जेड स्कोर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, आप देखिए जो जेड स्कोर का यहां पर फॉर्मूला होगा, अच्छा जेड स्कोर इज इक्वल टू, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर आप जेड स्कोर निकाल दीजिए फॉर्मूला डाल के, तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर जेड स्कोर इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है ना, रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे करके निकाल दीजिए। यहां पर रॉ स्कोर 85 है, रॉ स्कोर 85 माइनस मीन आपका 70 है, ओके मीन 70 है, बाय आपका 10 1.5, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मगर ऑप्शन ए इज द, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 अब देखिए, स्टूडेंट रिसीव्स ए टेस्ट स्कोर दैट कॉरेस्पॉन्डेंस टू ए जेड स्कोर ऑफ, जेड स्कोर -2 है। व्हाट डज दिस मीन, जेड स्कोर -2 है, तो जब जेड स्कोर -2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन, ओके 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ठीक है, क्लियर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। ओके, नेक्स्ट वन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए जेड स्कोर इनटू ए टी स्कोर। अच्छा, जेड स्कोर को हम टी स्कोर को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो साइन है, नेगेटिव और जो डेसिमल ये है, इसको हम रिमूव करते हैं, डेसिमल नेगेटिव को रिमूव करने के लिए, क्योंकि आपका जो टी स्कोर का फॉर्मूला है वो हम जेड स्कोर को क्या करते हैं, 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और +50, जब 10 में मल्टीप्लाई कर दिए तब आपका डेसिमल पॉइंट हट गया, जो +50 कर रहे हैं तो नेगेटिव भी रिमूव हो रहा है। तो यही है, और यहां पर जो ऑप्शन होगा, इट जनरली अवॉइड्स नेगेटिव नंबर्स एंड डेसिमल वैल्यूज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये होगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए टी स्कोर स्केल। टी स्कोर स्केल में बताया था, यदि आपका मीन देखिए, तो टी स्कोर का जो सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू 50 है,
और उसका जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10 है। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। टी स्कोर बहुत तरीके से अच्छे से मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसका जो जेड स्कोर का सेंट्रल वैल्यू क्या है, 0 है। जेड स्कोर का सेंट्रल वैल्यू क्या है, 0 है। तब टी स्कोर का ये सेंट्रल वैल्यू ऑफ जेड स्कोर, तो टी स्कोर का सेंट्रल वैल्यू 50 है। तो वैसा ही जब जेड स्कोर में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, टी स्कोर में 10, तो ऐसे कैलकुलेट करके आपका जो ऑप्शन होगा यहां पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इन ए टी स्कोर, अच्छा टी स्कोर 30 है, यहां पर टी स्कोर 30 है, तो जेड स्कोर -2 होगा। आप देखिए मैं बताया था, क्योंकि इसका सेंट्रल पॉइंट 50 है, तो जेड स्कोर आंख बंद करके आप बोल सकते हैं जेड स्कोर -2 होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो जेड इज इक्वल टू -2, जेड स्कोर -2 होगा। अब कैसे होगा मैं पहले से बता चुका हूं आपको। इधर टी 30 होगा, जेड -2 होगा। मैं बताया था एग्जाम्पल में भी आपको बता चुका हूं कि जैसे आपका, आप देख लीजिए कि जैसे आपका टी स्कोर का सेंट्रल वैल्यू है 50, ये सेंट्रल वैल्यू है। जैसे आपका जेड स्कोर -1 होगा, टी स्कोर 40 होगा, क्योंकि ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। तो जब जेड स्कोर -2 होगा, तब टी स्कोर कितना होगा, 30 होगा। इसे आप कैलकुलेट करके जाइए 50 से, ये सेंट्रल वैल्यू है। तो यहां पर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ द वेरिएंस ऑफ ए डाटा, अच्छा ये वेरिएंस मींस क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस का फॉर्मूला स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। 144 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। इसका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वेरिएंस है स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस दिया है 144, तो वेरिएंस स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 144, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 12 होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर डाटा देखिए, पूरा डाटा सेम है, यहां पर दे दिया पूरा डाटा वैल्यू सेम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आप फर्स्ट डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन क्या है ना, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, और यहां पर पूरा मीन भी 10 होगा, यहां पर मीन 10 होगा कि नहीं, तो यहां पर डेविएशन 0 हो गया। अच्छा, यदि डेविएशन 0 हो गया, डी स्क्वायर कितना हो गया, वो भी 0 हो गया। तो आप अभी फॉर्मूला डालिए सिग्मा डी स्क्वायर, आप अभी फॉर्मूला डालकर देखिए, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डालेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन, इसका स्क्वायर रूट है, डी तो डेविएशन है, अच्छा डी तो 0 हो गया, क्योंकि डेविएशन तो 0 हो गया ना, डेविएशन 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा इफ यू ऐड ए कांस्टेंट वैल्यू, आपको मैं बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन केस में कि यदि आप जो डाटा है, इट इज एक रूल था चेंज ऑफ ओरिजिन, एक प्रॉपर्टी देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू, आप कांस्टेंट वैल्यू ऐड करो ईच ऑब्जर्वेशन में कि कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, मगर जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये नॉट चेंज्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। आप इट इज इंडिपेंडेंट टू द चेंज ऑफ ओरिजिन, एक प्रॉपर्टी था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। कोई ईच ऑब्जर्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी नंबर ऐड करो, कि ईच ऑब्जर्वेशन से एक आर्बिट्रेरी नंबर सब्ट्रैक्ट करो, फिर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, देखिए डाटा शीट में एक स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मोर कंसिस्टेंट कौन होगा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। तो इसमें देखिए डाटा सेट ए हैज ए हायर मीन, डाटा सेट बी हैज हायर वेरिएबिलिटी, डाटा सेट ए इज मोर स्प्रेड आउट, डाटा बी इज मोर कंसिस्टेंट। नो, डाटा बी जो है मोर वेरिएबिलिटी,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उससे हम डिटेक्ट करेंगे कि ऑब्जर्वेशन हाउ बाय हाउ मच ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली डेविएट फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, ज्यादा है डाटा सीट बी में, तो इट मीन्स हम डिटेक्ट करेंगे कि जो डाटा सीट बी है हैज हायर वेरिएबिलिटी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट टेक। स्टैंडर्ड डेविएशन सभी समय पॉजिटिव है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव, देखो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें डी माइनस 1.5 है। ऑलवेज स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस डी कर दिया, ऑलवेज स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव है, मगर यहां पर इसको नहीं लेगा, डी आंसर वो दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट टेक माइनस 1.5। ठीक है, तो आज 15 क्वेश्चंस था और इसके ऊपर पूरा अच्छे से मैं क्लैरिफाई किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।